here. That is the last topic of chapter number 12 जो है relative motion analysis of two particles. We are going to cover this topic in today's lecture. शायद हम इससे relevant कुछ examples तो cover कर लें, लेकिन as far as exercise problem are concerned वो probably हम कल की क्लास में cover करेंगे, एक आध exercise का problem, और फिर कल की क्लास में हम kinetics जो है chapter number 3 उसको start कर देंगे. So before moving on to today's lecture, अगर हम इस पूरे चैप्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद काइनेमेटिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. सो पहले जितने टॉपिक भी हमने किए हैं आफ्टर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स, ये तमाम के तमाम टॉपिक जो है वो डील कर रहे थे सिंगल पार्टिकल और उसकी काइनेमेटिक्स के. ये जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं दे आर बेसिकली रेलेवेंट टू काइनेमेटिक्स ऑफ टू पार्टिकल्स. पहला हमने लास्ट वीक कवर किया था विच वाज द एब्सोल्यूट डिपेंडेंट मोशन एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल्स, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप दो पार्टिकल्स को इफ यू कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ इनएक्सटेंडेबल कॉर्ड्स एंड रोप, देन हाउ कैन यू रिलेट द काइनेमेटिक्स ऑफ वन पार्टिकल विद द अदर वन. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली द रिलेटिव मोशन एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल्स. थोड़ा सा इसके हवाले से मजीद बात करते हैं. Up till now, the absolute motion of a particle has been determined using a single fixed frame of reference. However, when the path of motion for a particle is complicated, sometimes it is more feasible to analyze the motion in parts by using two or more frames of reference. For the time being, we are going to consider only translating frames of reference and we are not going to consider the rotational frame of reference. अब ये है क्या topic? In order to understand this topic, let us consider a particle, say this particle A, which is traveling along a path represented by path A as shown to you in the figure. Right now this path is shown to you as a curved path, but this may be any path, maybe it may be a straight line path or it may be a curved path as shown to you in the figure. Then you have another particle which is this particle B, and it is again traveling along some path which is being represented by path BB in the figure. Again आपको curve path show किया गया, but it can be a straight line path as well. So you have two particles, both of them are traveling at their own paths A and BB respectively. Now if I ask you to define the position of particle A, then as per our previous understanding of this chapter, this is a stationary frame of reference जिसके origin को मैं O से represent करता हूँ. So if I ask you to represent the position of particle A, you are going to use a position vector which is this position vector RA, which is being referenced from the fixed origin O. So ये position vector RA है. अब ये position vector आपने किसी ना किसी specific coordinate system में लिखा होगा. बेशक वो coordinate system आपके पास XYZ coordinate system है या NTB है या R theta Z है, but this position vector is going to be referenced from the fixed origin which is origin O of the XYZ coordinate system. Okay, similarly अगर मैं आपसे कहूँ कि please define the position of particle B. So for particle B again you are going to use the same method to define a position vector which is this vector RB, which defines the position of particle B with respect to that fixed origin. Now समझने की बात क्या है कि चूंकि ये दोनों position vectors RA and RB are being referenced from a fixed origin O, so वो तमाम चीज़ें, वो तमाम quantities which are being referenced from a fixed origin are termed as absolute thing. For example, this position vector RA, since it is being referenced from the fixed origin, so it is termed as the absolute position vector. Similarly, this position vector RB, since it is being referenced from the fixed origin, it is also termed as the absolute position vector. So both vectors RA and RB are absolute vectors because both of them are being referenced from the fixed origin. इसके मुकाबले में अगर मैं आपसे कहूँ कि you need to define the position of particle B with respect to particle A, which itself is moving along the path AA. So in order to define the position of B with respect to A, you are going to define this vector which is RBA vector. Now this vector, since it is being referenced from a moving point rather than a fixed origin O, तो वो तमाम चीज़ें जो कि फिक्स्ड ऑरिजिन से रेफरेंस नहीं की जाती बल्कि किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मेजर करते हैं, those things are termed as relative things. So in this case,
this RBA is basically termed as the relative position vector, which defines the relative position of B with respect to A, whereas these two vectors RA and RB, since they are being referenced from the fixed origin, so they are termed as the absolute position vector. So आपके पास relative position vector RBA आ जाएगा, and by vector addition, अगर हम इस vector addition को देखें, so RA plus RBA should be equal to RB. That is, the absolute position of B should be equal to the absolute position of A plus the relative position of B with respect to A. अब ये तीनों चीजें जो है they are basically vector quantities. Vector quantity से क्या मुराद है कि आप simply 2 plus 3 equal to 5 नहीं लिख सकते, rather आपने इन तीनों पोजीशन वेक्टर्स को, बेशक वो एब्सोल्यूट हैं या रिलेटिव हैं, किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ होगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के बाद आप इनको वेक्टोरिकली जो है वो ऐड कर रहे हैं. सो RB should be equal to RA plus RBA, that is the absolute position of B should be equal to the absolute position of A plus the relative position of B with respect to A. इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि you need to find out the relative position of A with respect to B, so in that case आपका जो वेक्टर RAB होगा उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? It is going to be RA should be equal to RB, which is the absolute position of B, plus the relative position of A with respect to B. तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस तरह बन जाएगी. अब इस इक्वेशन में देखें, बेशक आप वो ये वाली इक्वेशन देख लें या AB वाली इक्वेशन देख लें, इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी भी आप रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, RBA फाइंड आउट करें, सो RB शुड बी रिटन फर्स्ट, it should be equal to RA plus RBA. इसी तरह अगर आप relative position of A with respect to B find कर रहे हैं, तो then RA should be written first, it should be equal to RB plus RAB. Physically अगर हम देखना चाहें तो both these relative position vector RBA and RB, they are equal in magnitude but opposite to each other. For example, RBA is basically the relative position of B with respect to A. जिसके respect से आप find out करें वो एक तरह से कर क्या रहे हैं कि you as an observer are considering yourself to be standing at point A or position A. इसी तरह अगर आप relative position of A with respect to B कर रहे हैं, so as an observer you consider yourself to be standing at point B and looking towards particle A, तो उसकी पोजीशन आपको किस तरह की नजर आएगी. So that is the difference between relative position and absolute position vector. थोड़ा सा मैं अगर समराइज करूं तो relative तमाम वो चीजें जो कि किसी ना किसी मूविंग ओरिजिन से, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर की जा रही हैं, they are termed as relative thing. वो तमाम चीजें जो किसी फिक्स्ड ओरिजिन से रेफरेंस की जा रही हैं, they are termed as absolute thing. Then the relative position of B should be equal to the relative position of A plus absolute position of B should be equal to the absolute position of A plus the relative position of B with respect to A. और वेक्टर एडिशन के हवाले से अगर हम देखें, RBA को अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो बेसिकली RBA वेक्टर शुड बी इक्वल टू RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर. अगेन या आप ग्राफिकली इनको वेक्टोरिकली ड्रॉ कर लें या आप इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख के सबट्रैक्ट या ऐड कर लें, यू कैन फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर. इसी तरह अगर मैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर RAB की बात करूं तो दैट वेक्टर इज बेसिकली RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर. तो जब भी आप रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं वो आप इस तरीके से रिलेटिव पोजीशन जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. Okay, now once we have talked about the relative position, now in order to find out the relationship of velocity, हम करेंगे क्या कि हम इस पूरी इक्वेशन को with respect to time जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे on both sides. तो आपके पास dr by dt जो है वो velocity बन जाती है. तो the first term would become vb, which represents the absolute velocity of B. It should be equal to the absolute velocity of A plus relative velocity of B with respect to A. आपकी ये जो RBA वाली टर्म है, it would become VBA, which represents the relative velocity of B with respect to A. अब इस relative velocity से मुराद क्या है कि again if you consider yourself to be standing at point A, आपको B की velocity किस हिसाब से नजर आएगी वो बेसिकली ये VBA रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिमिलरली आपके पास एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशनशिप आएगा. जब आप velocity को एक दफा दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, AB should be equal to AA plus ABA, where ABA represents the relative acceleration of B with respect to A, and AB and AA represents the absolute accelerations of B and A respectively. So basically आपके पास ये तीन relative motion equations आ गई हैं. One is this equation, which is the relative position equation. This one is the relative velocity equation, and this one is the relative acceleration equation, which are going to be used
for solving various problems relevant to this topic. इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये sequence बहुत important है, RB should be equal to RA plus RBA. अगर आप यहाँ RAB लिख देते हैं तो then your equation would be wrong, because by definition this RBA is not equal to RAB, rather this RBA should be equal to minus RAB, यानी एक दूसरे के बिल्कुल opposite हैं ये दोनों vectors RBA और RAB. So is the topic clear to all of you? Yes sir. ठीक है, अब इसी से जी पूछें. आ रहा था तो प्रीवियस मिस कर. थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही थी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, कि आप दोबारा पूछ सकते हैं? दोबारा से रिपीट करें बस पैराग्राफ. देखें, हमने इसमें सिर्फ बात ये की है कि अभी तक हमने जनरली एक सिंगल पार्टिकल के मोशन को कंसिडर किया था. अब इस केस में हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं. वन इज पार्टिकल A which is traveling along the path which is shown to you as AA. This may be a straight line or a curved path, whatever path आप consider कर रहे हैं. इसी तरह पार्टिकल B is another particle which is moving along path BB as shown to you here. As far as the positions of पार्टिकल A and B are concerned, आप पोजीशन वेक्टर्स RA और RB की मदद से ये पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं. चूंकि ये RA और RB आप एक फिक्स ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं RA एंड RB, दे आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर्स. तो वो तमाम चीज़ें जो फिक्स ओरिजिन से रेफरेंस की जाती हैं वो एब्सोल्यूट कहलाती हैं. इसके मुकाबले में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आप को कंसिडर करें टू बी स्टैंडिंग ऑन पार्टिकल A और आप पार्टिकल B की पोजीशन डिफाइन करें विद रेस्पेक्ट टू A, तो देन दिस वेक्टर व्हिच इज RBA इट इज टर्म्ड एज द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर. रिलेटिव हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम अ पार्टिकल व्हिच इटसेल्फ इज मूविंग, जो कि अपना मोशन कर रहा है, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं. तो अगर आप अपने आप को कंसिडर करेंगे कि यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन पार्टिकल A, आपको B का मोशन किस तरह का नजर आएगा, वो फिर आपकी वो रिलेटिव चीजें आ जाती हैं. तो वो तमाम चीजें जो फिक्स्ड ओरिजिन से रेफरेंस की जाती हैं वो एब्सोल्यूट कहलाती हैं. वो तमाम चीजें जो किसी मूविंग रेफरेंस से रेफरेंस की जाती हैं, मूविंग ओरिजिन से रेफरेंस की जाती हैं, वो आपके पास जो है वो रिलेटिव चीजें कहलाती हैं. जिस तरह यहाँ पोजीशन वेक्टर RBA है. अब वेक्टर एडिशन अगर मैं देखूं तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर. हेड टू टेल रूल से अगर हम अप्लाई करें, सो RB दैट इज एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ B शुड बी इक्वल टू एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ A प्लस रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. एंड सिंस इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, अगर मैं इसमें RBA को इस साइड पे रखूं और RA को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाऊं, तो इट वुड बिकम RBA वुड बी इक्वल टू RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर. तो आपको इसको इस फॉर्म में भी जो है वो याद रख सकते हैं. इसी तरह जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, आपको रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाएगी, वहां से आपको फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वेशन मिल जाएगी. बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव पोजीशन से मतलब क्या है कि अगर आप अपने आप को एक मूविंग ओरिजिन पे रख के देखें तो आपको दूसरे पार्टिकल का मोशन किस तरह का नजर आएगा, ये वो रिलेटिव पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सर ये जो ओरिजिन होगा वो भी मूविंग पार्टिकल ही होगा. देखें, ओरिजिन आपका एक ओरिजिन तो ये है जिसपे तमाम चीजें आप एब्सोल्यूट मेजर करें, जो कि फिक्स ओरिजिन है. दूसरा जो रिलेटिव के लिए ओरिजिन बन जाएगा, वो आपका वो ओरिजिन बन जाएगा जिसके ऊपर आप अपने आप को कंसिडर करें. फॉर एग्जांपल आप RBA फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आपका वो सेकंड ट्रांसलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा. इसी तरह अगर आप RAB फाइंड आउट करें, दैट इज द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो फिर ये B आपका उस इंस्टेंट के लिए ओरिजिन बन जाएगा रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने के लिए. ठीक है? ओके सर. सर ये जो B पे अगर मैं एज अ रेफरेंस उसको यूज कर रहा हूँ, तो ये जो कर्व पार्ट है, तो ये पार्ट B भी मूव ही करेगा ना? देखें, ये जो सारी एनालिसिस होती है किसी एक इंस्टेंट के लिए होती है. अभी थोड़ा सा वेट करें, लेट मी कम टू वेरियस एग्जांपल्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक. उससे आपको थोड़ा सा ये टॉपिक, ये आपका ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. ठीक है? तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रेलेवेंट टू दोस टू टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे. एक तो वो एब्सोल्यूट डिपेंडेंट मोशन एनालिसिस जो हमने लास्ट वीक कवर किया था, जिसमें रोप्स के साथ हमने कनेक्ट किया था, और ये वाला टॉपिक जो कि रिलेटिव मोशन एनालिसिस है. इनके प्रॉब्लम्स साथ मिला के दिए गए. तो अभी हम पिछले वाले प्रॉब्लम से सॉल्व कर चुके थे जो पहले टॉपिक के थे. अभी हम रिलेटिव मोशन एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, which is shown to you here, example 12-25 है. We have a train which is moving towards the right with a velocity of 60 miles per hour. So this train T is moving towards the right
with a speed of 60 miles per hour. Then you have a car, which is this car A. It is traveling along this road at a speed of 45 miles per hour, and this road is at an angle of 45 degrees with respect to the axis of the train. So you are asked to determine the magnitude and direction of the relative velocity of train with respect to automobile. So you need to find out the relative velocity of train with respect to automobile. The velocity of relative velocity VTA आपने जो है वो determine करनी है. So by formula अगर हम बात करें, what does this VTA would be equal to? Anyone volunteer? जो भी हमने discussion की थी, VTA किसके बराबर होगा? It should be equal to VT minus VA. ठीक है, बेसिकली इक्वेशन क्या थी? VT should be equal to VA plus VTA. तो VTA would be equal to VT minus VA. अब अगर हम इन दोनों, देखिए ये वेक्टर इक्वेशन है, इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस VT और VA को वेक्टर फॉर्म में लिखें. ये ना हम 60 माइनस 45 करके कहें कि 15 माइल्स पर आवर जो है वो VT होगा, नहीं ऐसा नहीं है. इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, सो वी नीड टू राइट ऑल दीज थ्री टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. अब वो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक चॉइस आपकी हो सकती है कि आप उसको XYZ कोऑर्डिनेट्स में लिखें तीनों वेक्टर्स को, आप उसको चाहें तो NTB में लिख दें, आप उसको चाहें तो R थीटा Z में लिख दें, लेकिन ऑल दीज थ्री वेक्टर्स शुड बी रिप्रेजेंटेड इन एनी वन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये ना हो एक को आप NT में लिख रहे हो, एक को आप R थीटा में लिख रहे हो और एक को आप XY में लिख रहे हो. ये तमाम वेक्टर्स किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने डिफाइन करने. सो स्टार्टिंग विद VT, हमें जो ट्रेन की वेलोसिटी गिवन है, it is given to us as 60 miles per hour, and since we are using a conventional XY coordinate system in which the positive right axis is the positive X axis, so what should be this vector VT would be? So this vector VT would be 60I miles per hour. यहाँ तक क्लियर है एक को VT वेक्टर? Yes sir. जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर. Okay. Now what about this vector VA? What should be this vector VA? Anyone volunteer? Sir, 45 cos 45 I or 45 sin So 45. it should be, क्योंकि आप देख लें ये वाला इसका डायरेक्शन ये है, so it should have positive x component, positive y component. Angle आपको given है which is 45 degrees. So this vector would become 45 cos of 45i plus 45 sine of 45j. So this is going to be vector VA. वैल्यूज हम इसकी 45 cos 45 और 45 sin 45 निकाल सकते हैं. So overall this VTA vector would be VT vector which is 60i minus VA which is 45 cos 45i plus 45 sin 45j. So coming to the overall solution, जिस तरह अभी बात हुई, VT हमारे पास 60i था, VA जो है it would be 45 cos 45i plus 45 sin 45j. It would be 31.82i plus 31.82j miles per hour. So as per the equation VT equal to VA plus VTA, ये आपने VT की वैल्यू लिख ली, ये आपने VA की वैल्यू लिख ली. So ultimately VTA is going to be VT minus VA. So overall this relative velocity of train with respect to automobile would be 28.12i minus 31.12j. अब देखें ट्रेन तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी, अगर आप एक फिक्स्ड ओरिजिन से इसको मेजर करते तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही नजर आ रहा होता टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. बट सिंस यू हैव कंसीडर्ड योरसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन दिस पार्टिकल ए, तो आपको VT जो है इसके मोशन के भी दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, उसमें I भी आ रहा है और उसमें J कंपोनेंट भी आ रहा है. सो दिस इज बेसिकली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोबाइल. जब आपने अपने आप को एज अ ट्रांसलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे यहाँ VA के ऊपर जो है वो प्लेस कर लिए, तो आपको ट्रेन की वेलोसिटी जो है उसके दोनों कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. So once you have found this vector, then simply इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो आप निकाल सकते हैं. जब किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में आपको कोई चीज मिल जाए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो आप निकालते हैं, उसके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर लें, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और टेंजेंट वाले फॉर्मूले से आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा. डायरेक्शन की अगर हम बात करें, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगा? सर फोर्थ क्वाड्रेंट.
फोर्थ क्वाड्रेंट तो बेसिकली जो आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक तरह से ये वाला एंगल है जो कि 10 के तरीके से आपने जो है वो फाइंड किया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो आप इस आसान सी एग्जांपल के हवाले से पूछना चाहें? ओके, सो थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम देखते हैं और इसमें फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा जज होगी। एग्जांपल 12-26, थोड़ा सा पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अगेन वी हैव टू पार्टिकल्स, one is this plane A which is traveling along a straight line path with the given kinematics कि it's at this moment it is traveling with a speed of 700 kilometers per hour and it is accelerating at a rate of 50 kilometers per hour square. So आपके पास एक पार्टिकल है जो कि प्लेन A है, it is traveling along a straight line path with the velocity and acceleration shown to you in the figure. Then you have a second plane which is plane B, and this plane B is traveling along a circular path having a radius of 400 kilometers. So plane B is basically traveling along a circular path. At the moment when both the planes are in line with each other, कि ये दोनों planes A और B जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ आ गए, इस स्टेज पे जो B की काइनेमेटिक्स आपको गिवन है वो क्या है कि this plane B is having a velocity of 600 kilometers per hour at the instant, whereas it is decelerating at a rate of 100 kilometers per hour square. अब ये जो 100 kilometers per hour square है ये क्या इसकी टोटल डिसेलरेशन है या उसका एक कंपोनेंट है? सर टोटल है, मैग्नीट्यूड गिवन है। सो शुड आई टेक इट एज AB? सर ये सिर्फ अलोंग उसके है ना, जो टेंजेंशियल पॉइंट बनता है उसके कर्व पे। जी, तो जो टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। So it is basically the tangential component of acceleration only. Yes, sir. आपके पास जो total acceleration बनेगी, it is going to be a vector sum of tangential as well as normal acceleration. तो आपने यहाँ गलती से इसको 100 किलोमीटर AB लेके solve नहीं कर देना. Basically it is the tangential component of acceleration. You need to find out the normal component as well, and then you need to vectorically add the tangential and normal components to find out the value of AB. जब भी पार्टिकल किसी कर्व पाथ में ट्रेवल कर रहा हो तो आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में आती है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट। ओके, उसकी बात अभी हम तफसील के साथ अगली स्लाइड्स पे भी करेंगे। क्वेश्चन की वर्डिंग अगर हम देखें, यू नीड टू डिटरमिन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी मेजर्ड बाय द पायलट ऑफ ए, यानी वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करनी है, इसी तरह ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करनी है। ये दो चीजें आपने जो है वो डिटरमिन करनी है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट the relative velocity of B with respect to A, the equation is simple कि relative velocity के लिए BA अगर हमने find करनी है तो equation is velocity of B should be equal to velocity of A, ये दोनों absolute velocity आ गई, plus relative velocity of B with respect to A. So this is the relative velocity equation which is being written for VB with respect to A. Now coming to the vectors which are being involved in this equation. First of all, what is this absolute velocity of A? क्या ये वेक्टर बता सकते हैं आप? It's 700J. So it is 700J kilometers per hour, which is the absolute velocity of A. Coming to the absolute velocity of B, which is being represented by VB vector, it is going to be 600, and again, since it is directed towards the positive y-axis, so it is going to be 600J. इससे हमारे पास velocity of B with respect to A, अगर मैं vector की बात करूं तो वो VB minus VA आ जाएगा, which is 600 minus 700, so it comes out to be minus 100J. So relative velocity of B with respect to A comes out to be minus 100. इसका मतलब क्या है फिजिकली? अगर आप अपने आप को कंसिडर करेंगे टू बी द पायलट ऑफ से प्लेन A, सो आपको B जो है वो एक लिहाज से अगर आप A के ऊपर अपने आप को अपने आप को पायलट समझेंगे A का, या कोई ऑब्जर्वर समझेंगे हु इज इन प्लेन A, तो उसको प्लेन B जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा।
इज इट क्लियर कि ये रिलेटिव वेलोसिटी से मुराद क्या है? अब ये सिंगल लाइन के अलोंग आ गई है तो समझना आसान है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a कम्स आउट टू बी -100 j। इसका मतलब क्या है कि अगर आप a के अंदर बैठे हुए हैं, प्लेन a के अंदर, तो आपको प्लेन b जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करें, तो वो हो जाएगा va माइनस वीबी, तो वो आपके पास वेक्टर आएगा 100j। उससे क्या मुराद है कि अगर आप अपने आप को प्लेन बी में बैठा हुआ महसूस करें तो फिर आपको प्लेन ए 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। सो आई होप कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हर एक को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट इस रिलेटिव जी सर, वेलोसिटी के हवाले से? क्लियर है सर। अच्छा चलें, अब सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए अभी हम एक्सेलरेशन पे मूव नहीं करते। मैं आपसे कहता हूं कि यही क्वेश्चन आपको गिवन है, बट नाउ प्लेन बी इज नॉट लोकेटेड एट द इंस्टेंट विच इज शोन टू यू हियर। कि मैं कहता हूं प्लेन बी यहां मौजूद नहीं है, रादर प्लेन बी इज एट द पोजीशन शोन। और ये पोजीशन किस तरह मार्क की हुई है? ये मैं कहता हूं कि ये एंगल आपको गिवन है विच इज से 30 डिग्रीज। अब मैं आपसे कहूं कि नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। बाकी काइनेमेटिक्स की वही है कि ये आपके पास स्पीड इसकी इस इंस्टेंट पे 600 किलोमीटर पर आवर जो है वो गिवन है। सो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस vb को जरा वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? ये वेक्टर क्या बन जाएगा? कैन यू राइट दिस वेक्टर? सर एक मिनट दें। जी जी, आप 1 मिनट से ज्यादा ले लें। Velocity by definition, what is the direction of velocity? It is going to be tangent to the curve. ऐसा ही है सर तो कंप्यूटर सर फॉर्म 600 साइन ऑफ तो थोड़ा सा और से 60 देखें। डिग्री। अगर ये एंगल 30 था तो ये एंगल 30 होगा, और ओवरऑल चूंकि एंगल 90 होता है तो रिमेनिंग एंगल आपका 60 आ जाएगा। सो व्हाट शुड बी वीबी नाउ? 600 cos 60i plus 660j 600 cos 60i plus 600 sin of 60j, ये आपके पास जो है वो वीबी आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट हर एक को? जी सर। चलें, अब थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं मजीद चेक कर लेता हूँ। जस्ट आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से इम्तिहान है कि वजह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ इंस्टेंट्स आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, तो बजाय इसके कि हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करें, इसी पे हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सेट करके देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सपोज कि मैं आपसे कहता हूँ कि प्लेन बी इज नॉट एट द इंस्टेंट शोन हेयर, रादर दिस प्लेन बी is at the instant which is shown here, and at the moment this plane B is traveling in this वे, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर इस तरह गिवन है, एंड द एंगल व्हिच इज गिवन टू यू हियर इज से 30 डिग्रीज। ये 30 डिग्रीज है। नाउ व्हाट शुड बी द वेक्टर वीबी? अब ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? जो पिछले केस में था वही होगा सारा, बस ये वाला कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट तो आपके पास अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव आ जाएगा, एंगल वही रहेगा 60 डिग्री। से 600 cos 60i माइनस 600 sin 60j। ठीक है, तो अब कोई भी इंस्टेंट आपको दे दिया जाए। इसी तरह मैं आपको मजीद मुश्किल सवाल देने के लिए कहूं कि a जो है इट इज आल्सो ट्रेवलिंग अलोंग अ कर्व पाथ में भी a यहाँ मौजूद है, b यहाँ मौजूद है, इनकी आप आपस में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो इसी तरह a के लिए भी आप उसके सेंटर से एंगल निकाल के उसको रिजॉल्व करेंगे, VA को VB को भी रिजॉल्व करेंगे, एंड इन द एंड VBA शुड बी इक्वल टू VB माइनस VA। सो कोई भी इंस्टेंट दे दिया जाए, कोई इशू तो नहीं है अब वेलोसिटी के हवाले से? नहीं सर, क्लियर है। तो ये वो आपका सोल्यूशन है जो कि ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड पे कर लिया है, सिंपल इंस्टेंट का, जब ये दोनों प्लेन एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। सो एज अ ऑब्जर्वर सिटिंग इन प्लेन ए, आपको बी की वेलोसिटी जो है वो -100 किलोमीटर पर आवर के तौर पे नजर आएगी। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी पूछें। एक्सक्यूज मी सर, जब हमारे पास VB की थीटा आता है डायरेक्शन, तो उसका क्या मतलब होता है?
वीबी का थीटा बेसिकली वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जो कि आपके पास एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, अगर आप इसे स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं तो वो आपको जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, जब भी हम वीबी की बात करते हैं तो इट मींस कि आपके पास ये एक्स वाई है और आप अपने आप को इस ओरिजिन पे खड़े होकर देख रहे हैं कि वीबी की आपको क्या वेलोसिटी नजर आ रही है। सो इट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो कि फिक्स्ड ओरिजिन से मेजर की जा रही है। जब हम रिलेटिव की बात करें तो या तो ए पे खड़े होकर बी की आप वेलोसिटी देख रहे हैं या बी पे खड़े होकर ए की वेलोसिटी आप देख रहे हैं, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, बिकॉज ए और बी दोनों जो है वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके नाउ कमिंग, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और अब हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जी पूछें सर। हम जब वी की जो वेलोसिटी है हम वी एयरप्लेन ए के साथ कंपेयर करेंगे तो हम इसमें ये इसे कर्वेचर क्यों नहीं बीच में कंसिडर कर रहे? देखिए उस तरफ भी कर्वेचर इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ऑल्दो बी इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ, बट एट द इंस्टेंट ये दोनों जो प्लेन्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के इनलाइन आए हुए हैं। इनलाइन आने से क्या मुराद है कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो था ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग, लेकिन जब ये वाले कर्व की बात करें तो चूंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होती है तो इस इंस्टेंट पे ये भी जो है वो इसी डायरेक्शन में आया हुआ है, इसलिए हमने सिंपली 700 माइनस 600 या 600 माइनस 700 कर दिया बिकॉज बोथ ऑफ देम वर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, तो जे के साथ हमने इस वेक्टर को लिखा था। वेलोसिटी तो बाय डेफिनेशन हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होती है, हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। एज सुन एज द इंस्टेंट चेंजेस, ये प्लेन थोड़ा सा आगे मूव कर जाए तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सो मैं इसको, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, ताकि हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बात कर लें। Okay, now coming to the acceleration term again, जिस तरह हमने velocity के केस में कहा था, लेकिन acceleration के केस में थोड़ा सा जो इक्वेशन है और एनालिसिस है वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वो किस तरह कि as far as the acceleration of b with respect to a is concerned, that a vector by definition should be equal to ab vector minus a vector, यानी आप relative position या relative acceleration of b with respect to a should be equal to the absolute acceleration of b minus the absolute acceleration of a। सबसे पहले हम a को अगर कंसिडर करें, what is the absolute acceleration of a, is it given to you? वेक्टर फॉर्म में क्या होगी ये? 50j sir. So it is 50j kilometers per hour square, which is already given to you on the figure. Now coming to plane B, since plane B is moving along a curved path, so basically for a curved path the acceleration of B vector AB should be equal to the vector sum of its two components, that is AB tangential and AB normal. So the total acceleration of B would be equal to AB tangential and AB normal, इन दोनों का आपने वेक्टर सम लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं नॉर्मल आया था, क्या चीज वेलोसिटी के लिए कि नहीं नॉर्मल आया था। देखें, वेलोसिटी के लिए इसलिए नॉर्मल नहीं आया था कि आप वेलोसिटी को एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिफ्रेश करें ना अपने थोड़े से काइनेमेटिक्स को, वेलोसिटी वाज ऑलवेज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द कर्व, आपकी टेंजेंशियल एक्सिस भी टेंजेंट टू द कर्व डिफाइन होती है, तो आपकी वेलोसिटी सारी की सारी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग आती है, इसलिए वहां नॉर्मल कंपोनेंट नहीं आ रहा होता। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, समझ आ गई है। इसी तरह जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा दोनों कंपोनेंट्स को मिला के बनती है, विच इज टेंजेंशियल कंपोनेंट जो टी एक्सिस के अलोंग होता है, नॉर्मल कंपोनेंट जो है एन एक्सिस के अलोंग होता है। तो इसलिए हमने लिखा है ए बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए बी टी वेक्टर प्लस ए बी एन वेक्टर। अब अगर मैं ए बी टी वेक्टर की बात करूं तो ए बी टी वेक्टर क्या होना चाहिए एज पर जो हमें फिगर गिवन है? जो गिवन है 100, उसका डायरेक्शन क्या है? सर टेंजेंशियल टू द कर्व है, डाउनवर्ड मतलब माइनस जे। टेंजेंशियल टू द कर्व है लेकिन ऑपोजिट टू वेलोसिटी है, इट मींस कि ये डिसेलरेट कर रहे हैं। हमने यही कहा था ना, जब v और at सेम डायरेक्शन में आए तो इट मींस के पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं, जब v और at ऑपोजिट आए तो इट मींस के पार्टिकल डिसेलरेट कर रहे हैं। सो आपकी इस डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस है, सो ab would become minus 100j। ये पॉइंट है, देखिए क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट इस ABT के हवाले से? Okay, so coming to ABN now,
what should be the magnitude of ABN? Do you V remember square the formula? V square divided by R. R तो V- given है जी, V square divided by rho या R जो भी आप कहते हैं, R is given to you as 400. V, what about V? given है 600. V भी given है 600, so 600 square divided by 400 would give you the magnitude of AB normal. Suppose मैं कहता हूँ वो magnitude, अभी मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, अगली स्लाइड पे हुई भी है. Suppose मैं कहता हूँ वो कोई अल्फाबेट X से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस V स्क्वायर ओवर रो को. ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इस ABN का. सो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये मैग्नीट्यूड हो गया विच इज X. What about its direction? Normal component of acceleration किस डायरेक्शन में आता है? It is always going to be towards the center of curvature. So यहाँ आपके पास center of curvature ये है. It means कि this is going to be the direction of AB normal. ये कौन सी एक्सेस बनती हैं? minus I plus I के प्लस आई. plus I sorry. So plus I. So overall आपके पास जो AB normal आएगा, it is going to be XI. So AB would become XI minus 100J. Is it clear to all of you कि AB हमने किस तरह find किया है? It is going to be AB tangential plus AB normal. AB tangential minus 100J था. AB normal हमारे पास XI था, where X is V square over rho. So overall AB vector would be equal to XI plus XI minus 100J. Clear है यहाँ तक? Is it clear to all of you? Please reply कर दें. चलें, अब आपके पास जब ये क्लियर हो गया, अभी हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा मैं इसके इंस्टेंट्स चेंज करता हूँ. ठीक है, अभी हमने जिस तरह बात की है कि हमारे पास AB टेंजेंशियल आ गया विच इज माइनस 100J, हमारे पास AB नॉर्मल आ गया विच इज V स्क्वायर ओवर रॉ, सो इट कम्स आउट टू बी 900. AB नॉर्मल वुड देन बिकम वेक्टर फॉर्म में 900I बन जाएगा एंड ओवरऑल AB वुड बी 900I minus 100J. So AB, as per the relative acceleration equation, AB should be equal to AA plus ABA. So ABA would be AB minus A. So ये आपके पास ABA की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन आ गया. तो बाकी क्वेश्चन सिंपल है. मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि सपोज मैं इंस्टेंट चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस इंस्टेंट पे आपके पास जो प्लेन B है, इट इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, और बाकी काइनेमेटिक्स उसकी उसी तरह है. ये 600 किलोमीटर पर आवर है और ये आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है. ये एंगल आपको नोन है, जिस तरह हमने पिछला इंस्टेंट कंसिडर किया था से ये आपके पास 30 डिग्रीज आ गया है. सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी AB टेंजेंशियल वेक्टर? Yes, it changes sign. जी, आप थोड़ा सा टेंजेंशियल वेक्टर बताना है. सर वो 100 into cos 60. अब देखें एंगल थोड़ा सा आपको नजर आ रहे हैं, ये 30 है. minus 100 into cos 60. ओके, नहीं अब देखें आप कर लें माइनस 100 cos 60I माइनस 100 sin 60J. अब इसका x भी नेगेटिव बन रहा है और इसका y भी नेगेटिव बन रहा है. सो माइनस 100 cos 60I माइनस 100 sin 60J, ये आपका जो है वो AB टेंजेंशियल बन जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Okay, now my next question is what should be vector ABN for this instant? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बिकॉज हमने वेलोसिटी नहीं चेंज की, रेडियस नहीं चेंज किया. सो V स्क्वायर ओवर रॉ विच इज 600 स्क्वायर ओवर 400, वो तो सेम रहेगा जिसको हमने x या 900 से डिनोट किया था. तो वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा ABN? सर उसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे. बिल्कुल ठीक है. सो ये ब्लू में आपको नजर आ रहा है ABN वेक्टर जो मैंने अभी ये ड्रॉ हो किया. जाएगा 900 cos 30I ओके, और माइनस 900 cos 30I और 900 cos 30I और माइनस 900 sin 30J. That's correct. So minus 900 sin 30J. So overall आपके पास AB जो होगा, it is going to be the vector sum of AB normal and AB tangential. Is this point clear to all of you? समझ आ गया है को? So अब आपको कोई भी इंस्टेंट दे दिया जाए, I hope कि आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा. इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि पार्टिकल A जो है वो इस इंस्टेंट पे वो भी कर्व में ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी मैं आपको वेलोसिटी और से एक्सेलरेशन दे दूं और आपको उसका एंगल दे दूं, उसका रेडियस दे दूं, तो कोई मुश्किल तो पेश नहीं आएगी उसके भी
कंपोनेंट्स बनाने में। जब भी कर्व में ट्रेवल कर रहा होगा पार्टिकल तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सिस के अलोंग, और जब भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा तो फिर जाहिर है उसके स्ट्रेट लाइन के एक्सिस के अलोंग ही उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आएगी। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए मेरा आपसे अगला एक अहम क्वेश्चन, यहाँ मैंने तमाम चीजों को कन्वर्ट कर लिया इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। क्या मेरे पास चॉइस ये नहीं थी कि मैं तमाम चीजों को एंटी कोऑर्डिनेट्स में ले जाता? चलिए मैं आपसे कहता कि इसको जरा एंटी कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें तो फिर क्या होता? सर एंटी कोऑर्डिनेट्स मुराद आपका वो जो रोटेशन वाले थे वो वाले? जी बिल्कुल वही वाले। सपोज मैं आपसे कहता ये पार्टिकल जो है, चलिए मेरे क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूँ, मैं कहता सर, यहाँ मौजूद है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती सर, वो नॉर्मल ही एक ही साइड पे रहते और टेंजेंशियल भी थे। आपकी टेंजेंशियल एक्सिस ये आ जाती, नॉर्मल एक्सिस ये आ जाती, लेकिन एंटी कोऑर्डिनेट तो हर पार्टिकल के हिसाब से डिफाइंड होता है ना। मसलन अगर ये ट्रेवल कर रहा होगा इस कर्व में तो इसका एन और टी डिफरेंट होगा, उसका एन और टी डिफरेंट होगा, इसलिए मैंने इसको एंटी में नहीं लेके गया बल्कि सब कुछ एक्स वाई में ले आया ताकि वो दोनों के लिए जो है वो सेम हो जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर।